Class 10th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to continue with the first chapter of our geography, that is resource and development. In our last class, we have seen that what do we mean by the resources, then how these resources are being categorized into the natural and the human resources. Then after that, we have seen that how these resources can be categorized on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership. Then after that, we have seen that this resources can also be differentiated on the basis of the status of development. Then later on, we have seen that what do we mean by the sustainable development. Then after that, we have seen that how the resources being planned in entire world as well as in India. Then later on, we have studied the most important resource regarding in terms of India, that is the land resources. And we had left the last class up by completing the land degradation and conservation measures. In this class, we're going to start with the soil as the resource. What do you mean by soil? Soil हमारा basically it is the uppermost layer of the earth. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई बिकॉज हम इस पर अपना कल्टिवेशन करते हैं. वी आर cultivating on this. We are getting the food from with the help of this particular soil only. और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और यू कैन से इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. You can say the organ of the living system. अगेन आपका सॉइल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स इट्स parent rock. Parent rock means the rock from which the soil is formed by the process of disintegration, withering, or whatnot like that. So there are on the basis of the parent rock there can be various forms of soil. And the types of soil which are being found in India are the alluvial soil. Again, alluvial soil is the most you can say एग्रीएबल सॉइल. ये सबसे ज़्यादा एग्रीएबल सॉइल है, और ये जो सॉइल है इसकी वजह से इंडिया के जो प्लेन्स हैं, these are the most highly populated, you can say, the area in our country. As well as if you go and see other countries also, आपको ये एरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट है वो बहुत एंशियंट एरा से हुआ है ना. द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट डू वी मीन बाय एलुवियल सॉइल, फ्रॉम वेयर इट कम्स. तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये गैंजेस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्रा है, तुंगभद्रा है, एंड ऑल दोज, दे यूज टू ब्रिंग इट फ्रॉम हिमालयाज. जब वो हिमालयाज से नीचे आते हैं तो वाटर इट इज़ ऑल्सो एन एजेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक. तो जो हिमालयाज जो माउंटेन है उनका जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो द रिवर विच इज़ फ्लोइंग इट brings along with it the silt, the disintegrated form of soil along with it. और जब वो नीचे आती है, जब उसका फोर्स कम हो जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है, so the soil it gets settled down around the bank of the river. और हमारा ये जो बैंक ऑफ द रिवर है इट बिकम्स द मोस्ट कल्टिवेबल लैंड. अगेन आपका जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, इट इज़ ऑफ टू टाइप, दैट इज़ दी भांगर एंड दी खादर. भांगर इज़ दी ओल्ड एलुवियल. ओल्ड एलुवियल वो वाली एलुवियल होती है जो कि थोड़ा सा पीछे मूव कर गई है. क्यों? क्योंकि नई एलुवियल सॉइल दैट इज़ जो खादर सॉइल है वो आपकी रिवर अपने साथ लेकर आ रही है. एलुवियल सॉइल इट इज़ यू कैन से it is getting its name from the element that is alum. और alum जो है वो बहुत ही important और you can say very essential element है हमारे एग्रीबिलिटी को बढ़ाने के लिए लैंड की. देन हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ही you can say it is having the exact
or you can say the good ratio of the clay, the कैल्शियम एंड दी सैंड, उसका जो यू कैन से तो जो रेशियो है इन तीनों चीज़ों का, इट इज़ वेरी मच favorable for the cultivation. Then next comes the black soil. Black soil, again with the name of the soil आप समझ सकते हो कि it is black in color. It is also known as regal soil. Black soil आपकी कॉटन ग्रो करने के लिए आइडियल सॉइल होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. देन आपकी अगेन पेरेंट रॉक ब्लैक सॉइल क्यों है? बिकॉज इट इज़ गेटिंग इट्स ब्लैक कलर फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक. फिर उसके बाद दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप. आपका जो डेक्कन एरिया है हमारा, उसमें ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल मिलती है, जैसे कि प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी. ब्लैक सॉइल आपको मिलती है गोदावरी एंड कृष्णा वैली के आसपास. अगेन आपकी जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर क्ले मटेरियल ज़्यादा होता है. मैंने बताया ना कि एलुवियल सॉइल इज़ हैविंग दी गुड रेशियो ऑफ क्ले, of calcium as well as the sand. But आप जैसे जैसे आगे देखोगे that you certain soil will either going to have the content of clay that is higher, or content of calcium is higher, or the content of the sand is higher. So उसके हिसाब से आपका जो soil की you can say जो growing capacity है वो उस पर डिपेंड करती है. जो जिस सॉइल में आपका सैंड ज़्यादा होगा, इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड दी कैन से दी मॉइस्चर. जिसमें क्ले ज़्यादा होगा, इट विल बी एबल टू होल्ड दी मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपका जो ब्लैक सॉइल है, इट इज़ मेड अप ऑफ फाइनली वेरी फाइन एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटीरियल, और इसकी दस इट इज़ वेरी मच capable in holding the moisture in itself. Again, this is your map of India, which is showing the forest and the mountains. Then the green part is for the forest and the mountains. Then the light green part, it is basically showing you the resources. Then the soil as a resources in this alluvial soil is shown by the light green color. Then उसके बाद आपका red and yellow soil है, and उसके बाद black soil. Then later on there is the laterite soil and the arid soil. Now the next comes the red and yellow soil. Red and yellow soil, again it is formed by the crystalline igneous rocks in the areas of low rainfall. जहाँ पर rainfall low होता है वहाँ पर ये igneous rocks के थ्रू बनी है. एंड अगेन इसके अंदर सैंड का जो कंटेंट है, इट इज़ वेरी हाई, दस इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू होल्ड दी मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और ये जो आपकी जो these soils develops a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. आपके कभी कभी ये जो रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, वो रेड सॉइल सी दिखने लगती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब आपका जो आयरन है उसका कंटेंट हाई हो जाता है. देन नेक्स्ट कम्स द लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज लेटर, विच मीन्स ब्रिक. तो ये जो लेटराइट सॉइल है, ये आपकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होती है ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस के थ्रू. और इसके अंदर जो ये सॉइल है, ये इंटेंस लीचिंग की वजह से होती है. लीचिंग होता है आपका दी वॉशिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू हैवी रेन. तो ये जो आपकी लेटराइट सॉइल है, ये लीचिंग की वजह से फॉर्म होती है. लेटराइट सॉइल्स जो होती हैं, दे आर वेरी एसिडिक एंड नेचर होता है. देन उसके बाद आपकी जो ये लेटराइट सॉइल है, इट इज़ डिफिशिएंट इन दी न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, और ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल सॉइल नहीं होती हैं. इट इज़ बीइंग फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ एंड ऑल्सो ऑफ द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, some parts of West Bengal and northeast regions.
और यहाँ पर ये जो लेकिन ये जो फॉरेस्ट है आपकी लेटराइट सॉइल जो है ये सपोर्ट करती है आपके फॉरेस्ट वेजिटेशन को, दैट इज़ द डिसूडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये जो सॉइल है ये ह्यूमस रिच होती है, लेकिन अंडर और इस ह्यूमस रिच होने की वजह से इवन दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यू कैन से cultivation does not take on a very large scale, but यहाँ पर जो vegetations हैं वो आपकी थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी। Then next comes the arid soil. Arid soil range from red to brown soil, मतलब कि ये जो arid soil होती है ये आपके red to brown soil के बीच में होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, इनका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है। अगेन इनका जो वाटर कंटेंट वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी इज़ वेरी लो। देन ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। आपका ये जो सॉइल है ये ह्यूमस और मॉइस्चर से लैक करता है। देन the lower horizon of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards। आप जैसे जैसे इसके नीचे जाते जाओगे इसकी जो कैल्शियम जो सॉइल है वो उसके अंदर कंकड़ आपको मिलेंगे। कंकड़ मीन्स दी बिगर यू कैन से दोज पेबल्स विच आर नॉट बीइंग डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू दी वेदर इज कॉल्ड दी कंकड़, और इसका जो कैल्शियम कंटेंट है वो भी इंक्रीज करता जाता है। देन कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम ऑफ होराइजन रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। जो वाटर है उसका इन्फिल्ट्रेशन जो आपके कंकड़ है वो जाने से नीचे रोकता है। और इस सॉइल की ये यू कैन से द क्वालिटी इसकी इस पे आपको बहुत ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा, तब जाकर यू कैन हैव दी कल्टिवेबल सॉइल। ये सॉइल आपको बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। देन नेक्स्ट कम्स दी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आर बेसिकली फाउंड इन दी हिली एरियाज ऑफ दी of our country where sufficient rain forests are available। यहाँ पर बेसिकली आपकी कल्टिवेशन से ज़्यादा दी फॉरेस्ट आर अवेलेबल। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो फॉर्म हो रहे हैं। आपका जो सॉइल का स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट सॉइल का वो आपके जहाँ पर उनका फॉर्मेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ की सॉइल देखने को मिलती है। Then next is the soil erosion and the conservation. Soil erosion, what do you mean by soil erosion? Soil erosion is the washing off of the upper layer of the soil। आपका जो soil erosion है उसके बहुत सारे you can say the agents can be there, like for example air, water, human activity। heavy rain हो गई, आपका soil बहकर चला गया। देन अगर बहुत ज़्यादा किसी जगह का वेदर बहुत ज़्यादा यू कैन से द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द वेदर इज़ वेरी ड्राई, तो वहाँ की जो सॉइल होगी वो धीरे धीरे अपना मॉइस्चर लूज़ करेगी एंड इट विल बी ब्लोन अवे बाय द एयर। देन आपका जो सॉइल इरोजन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इन दी प्रेजेंट सिनेरियो। हाउ? बिकॉज वी आर डूइंग दी afforestation, that is we are cutting down the forest, we are cutting down the trees of our forest, और उस वजह से the holding trees what they do, their roots वो क्या करते हैं आपकी soil को होल्ड करके रखते हैं एट सर्टेन एट प्लेसेस, और जब हम उन ट्रीज़ को कट ऑफ कर देते हैं तो जो आपकी जो सॉइल की होल्डिंग होती है वो लूज़ हो जाती है एंड दस दे कैन ईजली बी वॉश्ड अवे बाय वाटर एंड एयर। सो द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट थिंग इज सॉइल कंजर्वेशन। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम अपने सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो द बेस्ट आंसर इज बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़। हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करते जाएंगे हम उतने ज़्यादा अपने जो सॉइल है उसकी होल्डिंग को अच्छे से कर पाएंगे एंड ऑल्सो बाय इम्प्रूविंग आवर प्लोइंग एक्टिविटीज़। हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में थोड़े बहुत बदलाव करके हम अपनी जो सॉइल है उसको हम इरोजन से
बचा सकते हैं. To this we come to an end of today's class and this chapter as well. In our next class we're going to start with the second chapter of your geography, which will be the last chapter of your syllabus. Up till then, take care. Have a great day ahead.